I will please request both of the dignitaries to accept a small token of appreciation from my side. माँ गंगा आती है, उनकी पूजा होनी चाहिए, पर जो भागीरथ जिन्होंने सक्सेस किया उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए. I'll request Mr. Shri to take the stage. Thank you so much. Thank you, Nikhil. Very, very honored to be here with the minister. I think everybody knows about him, so I don't think I need to give any introduction, but I'll still make an attempt for those who do not know him that well. He himself is a very successful businessman, and that's the reason we are all so excited to have him here, though he represents government. But he's been one of the largest businessmen this country has seen. He's also called as the tycoon of real estate. His background is, he did his BCom, he did his law, and while he was practicing in Jodhpur, he's also the son of freedom fighter and Chief Justice of Guwahati. His father got transferred to Jodhpur court, and he said it's not appropriate for him to practice there, and that talks about the integrity of the person he is. So he switched practicing from there, and in the year 1981 he came to the city of dreams, Mumbai, to start what we all know as Lodha Group today. And from there to this place, it's, like I mentioned, one of the largest successful stories of Mumbai for a person who came from a different city. And I think that's what Bombay offers, and that's the reason we are all here. And to talk about his personality, like Nikhil Bhai mentioned, he came by train, he could have flown by a chartered flight, but that's what commitment is all about, because he's on purpose, he's here, and he was very kind to agree to come here despite his busy schedule. I think we already know that he needs to leave this place in another 25 minutes to attend to another meeting, again back in the city. So I'm not going to take too much time, but I'll have probably a few questions. And when we spoke to him through Nikhil Bhai, and I think we also know, he says, "Main bolta kam hu, kaam zyada karta hu." So his manifesto also says that he's a man of action. So when we asked, do we need to prepare you? He said, preparation kis baat ka? I think that's how this whole session is impromptu. I'm going to ask him some questions, and obviously these are generic questions, sir. So I will not make you uncomfortable for sure. Sir, you were a lawyer, came to the city and got into a business which is so unorganized even today, real estate. And it's a big box, big black box. How did you really think of becoming an entrepreneur and venture into a sector that was so unorganized? नहीं, मैं प्रैक्टिस करता था, वहाँ तक तो आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, पर प्रैक्टिस से एंटरप्रेन्योर बीच का रास्ता मेरा 4 साल का, निखिल को मालूम है, निखिल मेरे परिवार के सदस्य जैसा है, और आप में से जो भी निखिल से कभी मिले हुए या उनके साथ बात करते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद यू विल स्टार्ट लविंग हिम एंड हैविंग लॉट ऑफ लाइकिंग्स फॉर हिम. ही गॉट लॉट ऑफ गुड नेचर, हेल्पिंग नेचर, फुल ऑफ लाइफ. तो श्री जो 79 एक्चुअली इट वाज 79 ओनली 79 में आ गया था मुंबई के अंदर. शुरू में मैं जॉब करता था, 1800 रुपीज़ की मेरी सैलरी थी. 1.5 साल नौकरी किया, और उस समय मेरे पिताजी हाई कोर्ट जरूर थे, पर पैसा हमारे बहुत ज़्यादा नहीं था. मैं स्कूटर पे घूमता था, बसों में घूमता था. उसके बाद में खुद का थोड़ा मेटेरियल सप्लाई का बिज़नेस शुरू किया, फ्लैट की ब्रोकरेज का बिज़नेस शुरू किया. फिर जो एंटरप्रेन्योर का आप जो बता रहे हो वो ज़्यादा बाई चांस हुआ. मेरा एक दोस्त कोलाबा के गॉडविन होटल में काम करता था, अभी बोरीवली में ही रहता है, कपिल शर्मा नाम है उसका. सो उससे कभी कभी मिलने जाता था, तो वहाँ पर एक मोहम्मद भाई करके आदमी मिले उनका. उन्होंने बताया, मछली सप्लाई करने आते थे होटल में, तो उन्होंने बताया कि नाला सुपारा में एक ज़मीन है और स्टेट बैंक वाले वहाँ फ्लैट के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप
मैं आपको मिलाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ माई स्टोरी एज एंटरप्रेन्योरशिप। पर मैं थोड़ा बात को लंबा खींचना चाहता हूँ। मैं खुद का बखान नहीं करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि लाइफ में जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी मुंबई की। मेरे पास शुरू में तो रहने को घर भी नहीं था, ससुराल के दिए 1 रूम किचन में रहता था भाईकला में। पर मुझे 2-3 चीज़ें मैंने जो लाइफ में शुरू से अडॉप्ट की, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में सक्सेस होने के 2 तरीके होते हैं। एक तो काम करते जाओ, उसमें से गलतियाँ होगी, मार खाओ, तकलीफ पाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर गलतियाँ करो, फिर आगे बढ़ो। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप लाइफ के जो सक्सेसफुल पर्सन है दुनिया में, फिर वो चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे ओनासिस हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी हो, 50 नाम ले लीजिए, उनकी लाइफ के 1-1, 2-2 पॉइंट जो आपसे रिलीवेंट हैं, वो चीज़ों के अंदर आप उनको एडॉप्ट कर लो, तो फिर आपका लाइफ में सक्सेस का स्टोरी शॉर्टकट हो जाता है। पर जो एडॉप्ट करो वो फिर छोड़ो मत। वो सलमान खान का स्टोरी पिक्चर बाद में आया कि मैं एक बार डिसीजन कर लेता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता हूँ, पर आप वो पहले दिन से मान लो कि एक बार आपने सोच समझ के निर्णय किया, और निर्णय करते समय दिमाग को जरूर यूज़ करो, पर डिसीजन दिल को करने दो, और दिल का डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होता है। तो ये डिसीजन लेने के बाद में आप कैसे आगे बढ़ते हो उसके ऊपर देखिए। और मैंने मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी आपके साथ में सीरीज शेयर की, और उसके बाद में खूब मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने 9 साल तक सुबह 8:23 की विरार फास्ट पकड़ता था और रात को 11, सवा 11 बजे की लास्ट ट्रेन से आता था। ये सबको करना पड़ता है, आपके लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। सीधी भी जहाँ पर यहाँ तक पहुँचा है, निखिल भी जहाँ पर यहाँ तक पहुँचा है, आप में से कई लोग पहुँचे या पहुँचेंगे। तो फर्स्ट तो है कि मेहनत मेहनत मेहनत, फर्स्ट 3 पेज तो मेहनत के ही होने चाहिए, और उसके बाद के अंदर चीज़ों को लास्ट तक खींचते जाओ। 365 डेज आपको कोई चीज़ शुरू करने में लगता है, और 1000 डेज का आपका सेफ पीरियड होना चाहिए। कोई भी चीज़ में 1000 पीरियड तक घाई मत करो कि लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या करेंगे बैठ के। वेटिंग पीरियड होना चाहिए। जो आप एक चीज़ जो शुरू की उसको लिए 1000 डेज तक वेट कर सकते हो, तो फिर आपको आगे कोई रोकता नहीं। क्योंकि ये देश ऐसा है, ये मुंबई खास करके ऐसा है कि आप कुछ मत करो, कहीं से मट्टी एक ट्रक में भरो और दूसरी जगह जाके मट्टी बेच दो तो भी आप लखपति बन जाओगे। पर ये जो करो उसको पकड़ के रखो। दूसरे की गाड़ी ज़्यादा फास्ट चल रही है, दूसरे की थाली में ज़्यादा अच्छा खाना, इसलिए अपना खाना छोड़ो मत। जो आपका खाना है वही आपके काम आएगा, वो खाना पकड़ के रखो, उसी पर आगे बढ़ते जाओ। और तीसरा बात मैं आपसे, जो 2 बातें मैंने आपसे शेयर की, एक तो लाइफ में मार खा के सीखो, या सक्सेसफुल आदमी की आपसे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज को एडॉप्ट कर लो। जैसा ओनासिस है, एक ओनासिस का नाम आप सबने सुना है, जैकलिन कैनेडी, जो JF कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, तो उनकी वाइफ थी, बहुत सुंदर थी। JF कैनेडी के मरने के बाद में उसने ओनासिस से शादी की। ओनासिस दुनिया का उस समय का सबसे रिचेस्ट आदमी था। आज बिल गेट्स वगैरह, अदानी जी वगैरह के नाम होते, उस समय सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ओनासिस था। ओनासिस की लाइफ स्टोरी कभी कोई आप निकाल के पढ़ना, तो उसने कहा था कि ही वॉज वेरी पुअर। तो उसकी पिताजी माताजी में तलाक हो गया, अमेरिका में बहुत साधारण बात है। माताजी ने दूसरे से शादी कर ली, पिता तो पहले ही घर छोड़ के चला गया था, वो अनाथ हो गया, रोड के ऊपर आ गया। पर वो कहता है कि मैंने रोड के ऊपर जिस फुटपाथ पे सोता था, वो अमेरिका का सबसे बेस्ट फुटपाथ होता था। जो गाड़ी को धोता था, वो अमेरिका की बेस्ट बिल्डिंग्स जो होती थी उसकी गाड़ियों को जाकर मैं धोता था। महीने में एक बार मेरे को चाय टोस्ट खाने को मिलती थी, पर जो अच्छा होटल होता तो उसमें चाय जाके चाय टोस्ट खाता था। तो उसमें से मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखना है? जो करो वो बेस्ट करो। आप, हमारी जो कंपनी है लोडा ग्रुप, इन्होंने परिचय दिया, मैं बिजनेस को यहाँ नहीं बताना चाहता था, पर हमने हर समय ये पॉलिसी रखी है कि दुनिया में बेस्ट का जगह हर समय खाली रहता है, नीचे बहुत बढ़चढ़ रहती है। पर जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ पे चढ़ता जाओ, पहाड़ नुकीला होता जाता है और ऊपर बहुत कम लोग रहते हैं। तो जो बेस्ट कर सकते हैं वही लोग ऊपर चढ़ पाते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि ऊपर चोटी निकली भी होती है और नीचे बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचने के लिए भी लगे रहते हैं। तो उस समय आपकी होल्डिंग कैपेसिटी, आपकी मैनेजमेंट कैपेसिटी, आपकी पावर, आपकी पेशेंस, सब अटमोस्ट रहनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें करनी चाहिए, और इसके बाद में लाइफ में भगवान सबको मौका देता है। मेहनत ज़रूरी है, पर केवल मेहनत से कुछ नहीं होता है। लक भी ज़रूरी है, भगवान के प्रति श्रद्धा भी ज़रूरी है, सब चीज़ों का गुड मिक्स है।
और गुड मिक्स यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कर सकता है। उसको खुद की अपॉर्चुनिटी, खुद का किसी का कॉपी करके कुछ नहीं चलेगा। मैं निखिल का कॉपी कर लूँ, निखिल सीरी का कॉपी कर लेगा, नहीं होगा। सीरी सीरी है, निखिल निखिल है, लोड़ा लोड़ा है। तो जो जैसा है उसके अंदर से क्या आदमी बेस्ट कर सकता है उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लंबा जवाब दिया, पर भाषण नहीं दूंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हेन यू स्टार्टेड, आपने इनवाइट ओनली शुरू किया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही बढ़ाया था, मतलब इट बिकेम एन एस्पिरेशन टू ओन अ हाउस built by Lodha. So I think that shows how you think differently. Even those days when घर खरीदना was really a very difficult decision because nothing was transparent. Sir, मेरा next question है, of course, which is very common today. People talk about fundraisers and some companies are raising capital just on ideas. आपने I think way back in 2008, if I'm not wrong, सबसे बड़ा FDI raise किया था जब कोई जानते भी नहीं थे कि फंड रेज इतना बड़ा अमाउंट कैसे करना है, बेस्ड ऑन योर नेम एंड लाइक वन ऑफ आवर स्पीकर्स अर्लियर सेड, फाउंडर इज द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट सेल्स। आइडिया सब कुछ है, बट पीपल ट्रस्ट यू फर्स्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग कम्स आफ्टर। आपका ये एक्सपीरियंस जरा एक्सप्लेन कीजिए सर। आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ द फाउंडर्स हियर। वेरी ऑनेस्टली ये सब कुछ जो सक्सेस स्टोरी है उसमें मेरा रोल बहुत कम है। मेरे 2 लड़के हैं, बच्चों का रोल ज़्यादा है, पर मैंने जो उनको एनालाइज किया और मैंने जो उनको लाइफ में सिखाने की कोशिश की है, जो उन्होंने अपना आप सीखा है। वैसे फंड रेज करना सीधी बहुत बड़ी बात है, पर कोई इम्पॉसिबल नहीं है। मैं यदि नहीं बोलता हूँ तो सीरी ने भी लास्ट, अभी निखिल जी बता रहे थे कि लास्ट 6 महीने में आपने कुछ 600 करोड़ तक, कितना निखिल? 600 हाँ 600 करोड़। आप एग्जैक्टली फिगर सबको बताइए, कोई आपसे मांगेगा नहीं कि हमको सपोर्ट करिए। यहाँ पे श्रीज ने ब्लैंक हो गए कि ये क्यों बता दिया। Everybody is happy that they are sitting with a successful person. Thank you, sir. And they are attending a program of very good people, good human being, successful human being. So फंड रेजिंग के अंदर मैं जितना समझा हूँ 2 बातें मैंने समझी है। एक तो लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन लगी रहती है। वो नॉर्मल एक्सरे मशीन तो तुरंत रिजल्ट दे देती है, कुछ भी आपने बोला तो आधे घंटे में डॉक्टर वो लेके आ जाता है, फिल्म लेके आ जाता है कि भाई आपके ये प्रॉब्लम है कि ये सॉल्यूशन है। पर लोगों की आंखों की एक्सरे मशीन है वो तुरंत रिजल्ट नहीं देती है। यदि आप ईमानदारी से बर्ताव कर रहे हैं, ईमानदारी मने कोई ये भी नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनो, पर जो कुछ भी है ऑनेस्टी से कहना चाहिए। आपने यदि मान लो ये है कि भाई मैं आपसे 100 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ, पर इसमें 2 करोड़ रुपए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी लगेंगे, तो उनको यदि जानना चाहते हैं तो बताइए। आप कुछ भी हाइड करने की कोशिश करोगे तो एक्सरे मशीन क्लिक करके रॉन्ग बटन दबा देती है। तो एक तो इन्वेस्टर्स का विश्वास न केवल जीतना, बल्कि ये जो इन्वेस्टर्स या कोई भी हो, वो उनका आपस में भी बहुत एक दूसरे के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन रहता है। और अच्छा नाम कमाने में जहाँ महीनों लगते हैं, वहाँ अच्छा नाम बिगड़ने के बाद उसको सुधारने में सालों लग जाते हैं। और इसलिए बहुत फेथ के साथ में लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसा भी बताऊंगा कि यदि मान लो आपका बिजनेस ट्रबल में आ गया है, कोरोना आ गया, सेल्स नहीं हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, फॉरेन में यूक्रेन का युद्ध हो गया है, माल अटक गया है, जो भी कुछ हो गया है, कुछ भी करो, फॉरेन का ट्रिप कैंसिल करो, 2 गाड़ी को 1 गाड़ी कर दो, एफडी को छुड़ाना एफडी को छुड़ा दो, पर सबसे बड़ी आपकी संपत्ति आपकी रेपुटेशन है एंड योर विलिंगनेस टू पे बैक। इफ यू आर एबल टू मेंटेन दैट, देन इन्वेस्टर्स आर योर्स एंड दे नीड यू एज मच एज यू नीड देम। उनको भी अच्छे लोगों के साथ में काम करना, अच्छे लोगों के साथ में रहना। तो ये जो फंड रेजिंग का जो भी आपने सवाल किया, ये 2-3 प्रिंसिपल्स पे चलता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपका प्लानिंग अच्छा हो, आप लोगों का विश्वास जीतने में यदि कामयाब रहते हैं, लोगों को एक बार ये भरोसा पड़ जाता है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो वो आपकी 2-4 गलतियाँ भी टॉलरेट करके लेते हैं, क्योंकि मिस्टेक सबसे होती है और लॉस भी सबसे होता है। नो बिजनेस इज देयर के जिसमें कोई लॉस नहीं होता है। मोदी साहब आज दुनिया के सबसे बड़ा नेता हैं, फिर भी हम 1-2 स्टेट बीच में हार जाते हैं। तो हारने के बाद हम न तो नुकसान, कोई लोग हम पे फेथ ख़त्म कर देते हैं, न हम निरुत्साहित होकर घर पे बैठ जाते हैं। अगली लड़ाई और अच्छी तरह से कैसे लड़ें, पॉलिटिकल भाषा में बता रहा हूँ मैं, वैसी तैयारी करते हैं। सो इन्वेस्टर्स का विश्वास हमने हर समय जीतने की कोशिश करी, उनका जो कुछ भी है उनको सच सच बताने की कोशिश की, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है
उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो कुछ प्रॉमिस करते हैं वो काम करें, तो दे आर विद यू एंड दे विल कंटिन्यू टू बी विद यू. Thank you so much, sir. I'm not going to ask too many questions. Last 2 questions. एक question है, of course, this is not a political question, but we all know in India, especially unlike West, where businessmen do not join politics, but in the comfort of their bedroom always criticize politicians or politics. How was that decision for you? I know you started with ABVP and you are always an activist and wanted to do something for general people. But how was that joining, and any guidance for a lot of the entrepreneurs? I think entrepreneurs should also be part of the political change, in our opinion, and that's one of the reasons why we have platforms like this. But what's your thought on, or how was it joining politics, and today you are a full-time politician also, while you are also running a large empire? मैं बचपन से आरएसएस का स्वयंसेवक था. विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते हुए स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था. जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के अंदर एक्टिव था, और उसके बाद के अंदर मुंबई आ गया. मुंबई आने के बाद में पहले जो 2-3-4 साल स्ट्रगल के जीते, उसके बाद छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया था. 8-9 साल तक मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई पता भी नहीं था, अखबार भी नहीं आता था मेरे घर में. उसके बाद में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो उसके अंदर मैं जुड़ा. और मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया, इसके 2 बड़ी घटनाएं हो गई. एक तो क्यों आया वो, और मैं दूसरा एमएलए मुझे टिकट क्यों मिला वो. मैं आया इसलिए था, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको, आप सब यंग, बहुत देश का फ्यूचर हो, और निखिल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के श्री आपको कि आपने इतने अच्छे बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया है. मैं पॉलिटिक्स में आया था समाज सेवा, लोगों के लिए काम करना, ये सब सच था. पर उसके बाद ये भी सच था कि मैं लाइफ में खुद को साबित करना चाहता था, और मुझे लगा कि मेरी इम्पोर्टेंस के लिए मुझे समाज में, नहीं तो मैं जहाँ था वहीं ज़िंदगी निकाल देता, पर मैं वैसी ज़िंदगी निकालना नहीं चाहता था. आई वांट टू ऑल पॉसिबल लेडर में जितना ऊपर चढ़ सकता हूँ चढ़ना चाहता था. आई वॉज वेरी एम्बिशियस राइट फ्रॉम द डे वन. आई हैव नेवर प्लान माई वे, बट आई नो माई अल्टीमेट एम कि मुझे कहाँ जाना है. और इसलिए मेरे पास सामने जो कुछ आया मैं उसको समेटता चला गया. ये मेरा राजनीति में आने का, राम जन्मभूमि में मैं सक्रिय हुआ, तभी अयोध्या के समय, दोनों समय में वहाँ गया था. बाबरी मस्जिद तोड़ने में भी शामिल था, वापस आया. और उसके बाद में मुझे पॉलिटिक्स में मलबार हिल एरिया जहाँ पे मैं चुन के आता था, वहाँ पर कभी बीजेपी जीती नहीं थी. उस समय 1975 में भी जब हम सब सीटें मुंबई की जीत गए थे, उस समय 34 विधानसभा हुई करती थी, तो 33 विधानसभाएं जनता दल जीता था उस समय, पर एक विधानसभा उस समय भी कांग्रेस जीता था, और वो मलबार हिल की थी, क्योंकि वो रिच, सोकॉल रिच लोगों का एरिया था, और वो लोग समझते हैं कि बिजनेसमैन के लिए कांग्रेस ही अच्छी है. तो हम कभी जीतते नहीं थे, तो हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं होता था, बाहर से कैंडिडेट ला के दिया जाता था. तो वैक्यूम की एक छोटी सी स्टोरी है, कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए वो मैं निखिल के साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ. मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि श्री से तो मेरे आज पहली बार मिलना हुआ, बट इज़ ए जेम ऑफ बॉय. बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करना चाहता है, और बहुत इसके दिल में लोगों के लिए प्यार है. ये प्रोग्राम भी श्री आपके साथ में जो इसने किया, इसमें इसका खुद का बिजनेस इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, पर ये वो समझिए आप, वो महाभारत के समय एक हनुमान जी हुआ करते थे. तो सीता जी गई राम की, हनुमान जी को क्या जरूरत थी अपनी पूंछ में आग लगाकर श्रीलंका के अंदर चले जला के आ गए. तो दूसरों के भले के लिए वैसा व्यक्ति है कि किसके लिए इमोशंस में रहता है हर समय. और बहुत रेयर चीज़ है ये कि आदमी दूसरों का भला करता रहे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते रहे, इसमें खुद का अच्छा अपनाप होता है. तो राम जन्मभूमि के समय, उस समय कोई कैंडिडेट नहीं था करके, वहाँ पर मेरे पिताजी उस समय हाईकोर्ट जज से रिटायर हो चुके थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राजस्थान से, तो बीजेपी वाले सब जानते थे, और इसके लिए कोई कैंडिडेट नहीं था करके मेरे को टिकट मिला, और मैं पहला चुनाव 700 वोट से बाई डिफ़ॉल्ट जीत गया. दैट वाज नॉट वोट फॉर मी, दैट वाज एंटी कांग्रेस वोट. जो उस समय 92 के दंगे थे, राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उससे 95 का चुनाव मेरा एंटी कांग्रेस वोट में मुझे चुना गया. बट देन मैंने कभी बिजनेसमैन होने को छुपाया नहीं. मेरे पहले इलेक्शन में भी मैंने ओपनली बताया, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम बिल्डर. और मेरा तब से असूल था, आज भी कहना है कि भारत को छोड़ के दुनिया की सारी डेमोक्रेसी में
बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को, जॉब करने वाले को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। आप देखोगे तो अमेरिका के फोर्ड से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति रहे, जापान में रहे, जर्मनी में रहे, इंडोनेशिया में रहे। केवल भारत एक ऐसा है जहाँ पर बिजनेसमैन को ये समझा जाता है कि वाई ही इज़ इन पॉलिटिक्स, ही शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। पर मैंने खुल के बताया मैं बिल्डर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, पहले दिन से बताया। आज 28वां साल चल रहा है, 6 चुनाव पूरे हो गए, मैंने कभी छुपाया नहीं और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि बिजनेसमैन होने के बाद भी राजनीति में आया जा सकता है। पहला चुनाव मैं 700 से जीता, दूसरा चुनाव मैंने विधानसभा बम्बई का अध्यक्ष था तो मैं पूरे बम्बई घूमता था। पूरे चुनाव में मैंने कभी इस बार 1 घंटा भी मेरे विधानसभा में नहीं लगाया, तो भी 98,000 वोट्स का मेरा मार्जिन रहा था। तो लोग बिजनेसमैन को नाराज़ नहीं होते। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूरी है, आपके खुद के लिए ज़रूरी है। ये देखिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, पॉलिटिशियंस आर गोइंग टू रन योर लाइफ, दे आर गोइंग टू गवर्न द कंट्री। सो बी विद देम, बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपको जो पार्टी अच्छी लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, पर उसमें एक तो आपको बहुत कुछ एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। और पॉलिटिशियंस इसलिए भी इस देश के लिए अच्छे हैं क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि हम तो खुद बिजनेसमैन नहीं हैं, हम तो केवल उनके, आप कॉलम में लिखोगे जो विधानसभा का फॉर्म होता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो लिखेंगे हम तो कुछ नहीं, हम तो समाज सेवा करते हैं। पर वो मेरे से बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मेरे से बड़े घरों में रहते हैं, तो क्या बिजनेस करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे कमेंट नहीं करना है। पर इससे तो अच्छा है कि आप जो कर रहे हो खुल के करो बिजनेस, और जब आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम रहता है तो फिर आप उसमें से समाज को कुछ वापस देते हो। वो सब नहीं करना पड़ता जो कि आज के काफ़ी पॉलिटिशियंस करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न यू ऑल हेट पॉलिटिशियंस। आप सबको पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती है, आप सबको शायद मोदी जी के अलावा या 4-5 पॉलिटिशियंस के अलावा पॉलिटिकल नेता के ऊपर भी फेथ नहीं है। इसके हम खुद वी आर टू बी ब्लेम फॉर इट, वी पॉलिटिकल पर्सनस। बट मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर आइए। कुछ नहीं होगा तो आपकी सोसाइटी का चुनाव लड़ो, यदि यहाँ पर इस सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में हो तो यहाँ गवर्निंग कमेटी का चुनाव लड़ो। आप कहीं ना कहीं लीडरशिप प्रोसेस में शामिल होंगे तो लाइफ में आपका विजन खुलेगा। बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। Thank you, sir. Very well said. Last question, sir. I know your time is very, very important. मैं एक concept बात करना चाहता हूँ, sir, which I call it as C square, I square, P square. C square for me is courage and capital. तो lot of entrepreneurs, उनके पास courage तो होता है start करने का। जैसे महाराष्ट्र is the largest state that has a number of startups, 22,000 plus startups, and the second is Karnataka with 9,000 startups. But आज भी Bangalore is the city of startups or hub of startup world. तो यही चीज़ हमको change भी करना है, इसलिए we had an opportunity also to meet the DCM Shri Devendra Fadnavis ji about 2 weeks ago. We formed a small group of founders back in India, in Mumbai, called Team. उसके थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं। But coming back to my C square, I square, P square principle, C square तो solve हो गया, I square में again ideation, lot of founders come with multiple ideas, तो वो भी solved है। But the rest of the I and P square, which is where infrastructure, policy and a platform, is where I think government plays a major role. तो आपने जैसे अभी बताया कि businessman politics में आना चाहिए। Similarly, I know you're doing a lot of stuff, especially from your skill development ministry, entrepreneurship ministry, women and child development. How do we get all these enablers established? And if you can comment on what can we expect from the government, it'll be great to hear from you, sir. नहीं, मैं थोड़े सवालों के जवाब लंबे लंबे दे रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा सर। क्योंकि मेरे को बाद में भाषण नहीं देना, इसलिए इसी में मेरा भाषण पूरा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, हजारों लाखों लोगों ने। कुछ स्टेज पे दिखते हैं, कुछ पीछे थे। तो बहुत सपने देख के उनको एक चाहिए था कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे देश में बोलते हैं उस समय दूध की नदियाँ बहती थी, हीरे पन्ने, मतलब बहुत देश रिच देश था। तभी तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस देश को बहुत आगे बढ़ाने के लिए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, खुद की जान गंवा के। उनका भी परिवार था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में 1947 के बाद में जो सरकार है, आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, इट्स नॉट कांग्रेस बीजेपी, पर फैक्ट ऑफ द लाइफ इज़ कि उस 70 साल के अंदर देश 70 साल पीछे चला गया आगे जाने की बजाय।
और इसके लिए आज जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये सिस्टम इतना रोटन है कि मेरे जैसे आदमी को भी, जो कि मैं आज कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। हारता नहीं हूँ, थकता नहीं हूँ, पर परेशान जरूर हो जाता हूँ। 70 साल में पूरा का पूरा सिस्टम इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। वो गुरु पिक्चर किसी ने देखी होगी, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने गुरु पिक्चर देखी, अभिषेक बच्चन की, वो जिसमें धीरूभाई अंबानी का रोल करता है। तो उसमें निखिल वो जो कहता है वो सही है कि भाई मैं कानून वानून ज़्यादा समझता नहीं। अब इस देश में कानून कितने हैं श्री, तो इस देश में इतने कानून हैं कि कानून की एक एक किताब की एक एक कॉपी यदि आप इतने बड़े हॉल में रख दो तो ऐसे 5 हॉल बढ़ जाएं। तो कोई न कोई कानून का आपका दिन में 5 बार आपके हाथ से टूटता है। फिर वो ऑफिसर डराता है, अरे आज तो आपने गाड़ी लेफ्ट में पार्क कर दी थी, मैंने तो आपका फाइन लगा दिया, अरे आपका तो फार्म लाइसेंस आपने फार्म तो भर दिया था पर एक पेपर तो लगा ही नहीं, अभी तो डेट निकल गई, अभी आगे क्या करने का, अभी तो पेनल्टी लगानी पड़ेगी। तो ये जो सारे सिस्टम इस देश में बिगड़ गया, इसका जिम्मेदार उस समय की सरकार थी, उस समय की लीडरशिप थी, और उन्होंने इस बात को माना नहीं कि ये देश कितने साधारण लोगों का देश है, कितने ईमानदार लोगों का देश है। बिलीव मी, भारत के जैसे संस्कारित और ईमानदार और मेहनती लोग, ये रेयर कॉम्बिनेशन दुनिया में शायद बहुत कम देशों में देखने को मिलेगा। इसके बाद भी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि आपको बैंक से लोन लेना हो, आपको आपका स्टार्टअप का लाइसेंस लेना हो, आपको यदि छोटा सा माल यहाँ से वहाँ भेजना हो, आपको कोई चीज़ सर्टिफाई करानी हो, कुछ इंपोर्ट करना हो, इट्स ए हेल ऑफ ए प्रॉब्लम्स। सो सरकारी सिस्टम तो ऐसा ही है। मोदी साहब ने 8 साल में होने के बाद में 4000 से ज़्यादा कानून तो उन्होंने स्क्रैप कर दिए। ही हैज़ पुट इज बेस्ट। पर जब वो प्रधानमंत्री बने तब उनको भी शायद मालूम नहीं था कि ये देश में इतनी प्रॉब्लम उनको लॉन्ग रन में देश को अच्छा करने में आएगी। मैं अभी आपने स्टार्टअप डिपार्टमेंट का स्किल का बात किया, मेरे पास स्किल डिपार्टमेंट है। मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में स्किल डिपार्टमेंट शुरू किया देश के अंदर। और जब देवेंद्र जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने ना, उन्होंने 2015 में स्किल डिपार्टमेंट शुरू किया और जगह जगह स्किल सेंटर खुल गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस समय 4500 स्किल सेंटर थे। अब वो 4500 स्किल सेंटर 2017-18 तक बने, आज 22-23 में कितने होने चाहिए? तो प्रोपोर्शन के हिसाब से गिने तो बहुत बढ़ने चाहिए, पर सच ये है कि 4700 स्किल सेंटर अब आज की डेट में करीबन कुल मिला के 500 या 550 रह गए, तो कम हो गए। तो उसका रीज़न क्या है? स्किल की ज़रूरत नहीं है, लोग स्किल नहीं सीखना, ये सच नहीं है। सच क्या था कि जिन्होंने स्किल सेंटर्स खोले उनमें से कई सारे लोगों ने वो एक उस पर अंगूठा मार करके 1 महीने की अटेंडेंस लगानी, बायोमेट्रिक, इतना सब कुछ उसमें उल्टा पुल्टा हो गया कि जो 2014, 15, 16 के अंदर मोदी साहब का सबसे पेट सब्जेक्ट स्किल सेंटर रहता था, वो उन्होंने 4 साल के लिए उस पर बोलना ही कम कर दिया। अब उन्होंने वापस उसको टेकअप किया है, क्योंकि उनका ये पक्का मानना है कि इंडिया के अंदर जितनी स्किल की कैपेसिटी है, स्किल डेवलपमेंट की, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसके लिए ये सरकारी सिस्टम तो आपको ऐसे ही लगेंगे। मैं आपको कुछ गलत रोजी पिक्चर दिखाना नहीं चाहता हूँ, आपको इससे लड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं एक जरूर कर सकता हूँ। यहाँ कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके पास में? जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको सबको मैं मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास में अभी बोलता हूँ, आपको जिसको लिखना है आप लिख लीजिए। इट इज़ 9820215992। आई एम रिपीटिंग, इट इज़ 9820215992। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। 3-4 घंटे में या तो मेरे यहाँ से कोई आपको कॉल करेगा या मैं खुद आपसे बात करूँगा। बट बिलीव मी, यदि आप मेरी जगह होते तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, तो वो सारी प्रॉब्लम मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके, आपका मित्र बनके आज आपके साथ ये स्टेज शेयर कर रहा हूँ, इसलिए उसको सॉल्व करूँगा। आप आगे बढ़िए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज के इस निखिल के और श्री के मेहनत के बाद में आप में से 40-50 लोग भी कल सुबह तय करेंगे कि नहीं, हम तो और जोश से भी काम करेंगे। आप घूमने जाते हो, क्यों घूमने जाते हो? वापस फ्रेश होके आते हो। शांत दिमाग से 2 दिन बैठे रहे, घूमने गए, दिमाग में 4 नए आइडिया आए,
4 प्रॉब्लम टेंशन दिमाग से कम हो गए, नेक्स्ट डे ज़्यादा ताकत के साथ में लगती हो। आज इस प्रोग्राम के बाद में मन में ये सोच कर जाओ कि जो सपना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए देखा था उस सपने को मैं साकार करूँगा। जो सपना अपने माँ बाप पूरा नहीं कर पाए खुद के लिए, मैं उनको करके दूंगा। और मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनूंगा कि आज जहाँ सीरी बैठा है, निखिल बैठा है, लोढ़ा बैठा है, कल मुझे भी वहाँ पर स्टेज पे बिठा कर दूसरे लोगों को बताने के लिए बुलाया जाए, मेरी बात सुनी जाए। एंड यू कैन डू इट, बिलीव मी। आप में बहुत ताकत है, खुद की ताकत को पहचानिए और हर हालत में आगे बढ़ने का जिद पकड़ के रखिए। कोई कितना भी लात मार दे, गिरा दे, धक्का दे दे, अड़चने खड़ी कर दे, रुकिए मत। जिसने ये तय कर लिया मैं तो 1000 डे पे मेरे सोच किए हुए काम पे चलना जाऊंगा, भगवान खुद नीचे आके आपको आशीर्वाद देके सक्सेस करेगा। सरकार की प्रॉब्लम रहेगी, राम राज्य अभी आया नहीं है, जब आएगा तब आएगा, पर इससे डर के रुकिए भी मत, आप आगे बढ़िए। ये दोनों भी आपके साथ हैं और मैं भी इनका मित्र बनकर आपके साथ हूँ। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन सर। Thank you very much. It's an opportunity for me where I can very humbly ask question to मंगल जी, so I won't miss that opportunity. सर, आकांक्षा जी ने अपने स्पीच में बताया कि अगर सक्सेसफुल होना है तो ये अमेरिकन ड्रीम छोड़ो, पहले इंडियन ड्रीम पे आइए। तो मेरे दोनों क्वेश्चन में एक साथ मर्ज कर दूंगा कि सर, हाउ वी टुगेदर, नॉट जस्ट यू एज गवर्नमेंट, हाउ वी टुगेदर कैन मेक महाराष्ट्र नंबर 1 as far as entrepreneurship and startup industry is concerned. And second is a very personal question, sir. Do you really know, sir, कि आप ध मंगल प्रभात लोढ़ा हैं? क्योंकि आप इतने हम्बल होते हैं। मेरे सोसाइटी के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, सोसाइटी के रॉन्ग मुंह से निकल गया, मेरे सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को भी लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कभी कभी आपको याद रहता है कि आप ध मंगल प्रभात लोढ़ा है, द वे यू सेड, द वे यू टॉक। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द नंबर। आई फील कि आज का इवेंट सक्सेसफुल हो गया। वंस अगेन थैंक यू सर। सर प्लीज। नहीं निखिल, आपका पहला क्वेश्चन था कि हाँ, टुगेदर सब मिलके महाराष्ट्र को नंबर 1 कैसे बना सकते हैं। तो वैसे एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि निखिल मेरे लड़के की उम्र का है और मेरे लड़के के ऊपर जितना मुझे अफेक्शन आता है उतना ही निखिल पे आता है। और निखिल अपने पिताजी को जितना रेस्पेक्ट देता था उतना ही मेरे भी देता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इसको छोड़ना मत, ये हट जाए तो भी इसको आप पकड़ के रखना। ये कुछ न हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचता है। तो बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगा निखिल, आपका जवाब, मैं सवाल का जवाब शायद पॉजिटिव नहीं दे पा रहा हूँ, पर डोंट माइंड अबाउट इट। जॉइंटली कुछ मत करिए, होगा भी नहीं। इंडिविजुअली करिए। आप इंडिविजुअली सक्सेस हो जाएंगे तो देश अपना आप आगे बढ़ जाएगा। इस देश के अंदर बहुत जॉइंटली काम करने की सिस्टम नहीं है। जॉइंटली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यदि घर में 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे अलग अलग फील्ड में भी आगे बढ़कर सक्सेस हो गए तो वो घर सक्सेस हो गया। ऐसा ही हमारा भारत है। हर आदमी यहाँ पर, हर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अपना आप में कुछ अच्छा कर लेगा तो ज़रूर वो सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप इतने हम्बल हैं तो हाँ, उसका असर नहीं होता है? नहीं, हम्बल मैं इसलिए हूँ कि मैंने लोगों को कुर्सी के बाद की हालत भी देखी है। जब आप पावर में नहीं रहते हो, कोई आदमी परमानेंट पावर में नहीं रहता है। और इस देश में कितने प्रधानमंत्री होके गए, यहाँ बैठे हुए आप में से किसी एक से भी पूछेंगे तो सबको नाम याद नहीं होंगे। है क्या किसी को याद पहले प्रधानमंत्री से? तो देश के प्रधानमंत्री को जब याद नहीं रखते तो मुझे और आपको कौन याद रखेगा? तो सबको वापस वहीं पर जाके लास्ट में बैठना है। तो अपनी रियल पोजीशन कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं, निखिल हम्बल नहीं है, ये मुझे मेरी रियलिटी का एहसास है कि ये सब टेम्प्रेरी फेज़ है। कोई मिनिस्टर परमानेंट नहीं रहता, किसी के पास पावर भी परमानेंट नहीं रहता। कल जहाँ पर कोई और था वहाँ पर आज हो, पर आने वाले समय में आगे वहाँ पर कल कोई और आएगा। इतना ही है कि जब तक हो तब तक अपना आप को अच्छा बिहेव रखो और आने वाले समय के अंदर भी खुद का कॉन्फिडेंस कभी टूटने मत दो। आपके सबसे बड़ी ताकत आज के समय में 3 ताकत सबसे बड़ी है। एक तो स्वयं के ऊपर का विश्वास, एक आपकी लोगों के बारे में, लोगों की आपके बारे में धारणा, आप कितने भी खराब हो, कितने भी अच्छे हो, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और तीसरा है मैन पावर। मैं
प्रमोद महाजन जी हमारे राजनीति गुरु हुआ करते थे, वो एक बात कहा करते थे कि कोई ज़माना था कि इस देश के अंदर जिसके पास में सबसे ज़्यादा लाइसेंस हो वो देश में सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन गिना जाता था, एंटरप्रेन्योर गिना जाता था, क्योंकि उस समय लाइसेंस राज था। उसके बाद में ऐसा समझ में आया कि जिसके पास में सबके पास लाइजनिंग हो, पटा सकता है किसी को भी जाके वो। दिल्ली के अंदर तब ऐसा समय आया था 10-15 साल का कि दिल्ली में सारे होटल्स लाइसेंस से भरे रहते थे, लोगों को काम कराते थे और वही आदमी पैसे वाला बड़ा सक्सेसफुल गिना जाता था एंटरप्रेन्योर, जिसके लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा समय आया 10-15 साल में जिसमें इंफॉर्मेशन पावर बन गया कि आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, वो यदि इंफॉर्मेशन आपके पास में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्टेड, तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो। और मेरी ऐसी समझ है कि आज का जो समय है, आपके पास में पैसा हो, इंफॉर्मेशन हो, लाइजनिंग हो, सब है ठीक है, पर आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट मैन पावर हो गया है। जिसके साथ में, जिसके पास में सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग है, मैन पावर है, वही लाइफ में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। आपके पास कोई भी अच्छा व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो पियोन है, चाहे आपका मैनेजर है, उसको छोड़ना मत। आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा राज इसका ताकत रहेगा कि आपके साथ वाले लोग कैसे हैं। अच्छे लोगों को साथ में रखोगे तो आपकी ताकत 1+1 2 नहीं होकर 11 हो जाएगी। थैंक यू। मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ स्पीकर्स। निखिल के बारे में मैंने कहा, श्री के बारे में कहा। सी सर्विफाई जिस कंपनी ने सारा ऑर्गेनाइज किया, निखिल ने सपोर्ट किया। अंकुर अग्रवाल जी, हिमांशु जैन जी, आकांक्षा हजारी जी, आप सब लोग बोले। पैनलिस्ट कार्तिक रेड्डी, यश केला, अकृत वैश्य और प्रिया व्यास और प्रिया सिंह, ये सब लोगों ने पैनलिस्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, और 10-15 मिनट बैठूंगा, आप कंटिन्यू करेंगे। आप में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 10 मिनट का समय आप दीजिए इनको। Good evening, sir. Myself Shahib. I'm from K.A. Shroff College, currently studying in S5. मैं second year में हूँ, and मैंने first step रखा entrepreneurship की तरफ. I have an idea, and I'm sharing my idea to everybody, हर जगह जा करके. And sir आए थे हमारे college में. Sir आए थे हमारे college में, and I attended that event. Sir, before I was launching that IPO, and you were telling about it, and then Not launching. that time. Then last month, AIC, Atal Incubation Center, connected with our college. And thank you so much for this opportunity. I am like, मेरे age में, what are the steps I can take forward to boost my career? Like आप sir लोधा के owner हो, so it's a very big opportunity for me to ask directly. आपका खुद का आसपास का एनवायरनमेंट आपको क्या चीज़ करने के लिए सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपके खुद के मन में क्या है। आपके मन में जो विषय होगा, 2-3 विषय होंगे, उन्हीं के आसपास सोचो। और आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। अपना मान लो आपका ताकत है कि आप गाड़ी बनाने की फैक्ट्री बना सकते हो, तो गाड़ी बनाने की फैक्ट्री लगाओ। और आपकी ताकत है नहीं कि गाड़ी को सीट कवर बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो, तो सीट कवर बनाने की फैक्ट्री लगाओ। खुद का असेसमेंट करो, फिर जो आपका मन बोले उतना करके आगे बढ़ो। मैं आपके बारे में पर्टिकुलर कोई एक बिजनेस के बारे में आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। Okay, thank you so much, sir. Akanksha. Keyur, Akanksha. Hi, namaste, sir. Namaste. So I have a question. I'm Akanksha. I'm the founder and CEO of Love Local. And I had said earlier, we all talk about the American dream, but I'm here for the Indian dream. So I would like to know, what is your dream for the women of Maharashtra? नहीं आकांक्षा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देश का एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इस देश में बाकी सब चीज़ें अच्छी रही, पर एक समय ऐसा आया था कि जब वो 2-4 मिनट और लूँगा, चलेगा क्या, बैकग्राउंड बताने के लिए, क्योंकि आप खुद इतनी एक्सपर्ट हो, इतनी सीनियर हो कि मुझे आपका जवाब देने से पहले कुछ थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ रहा है। तो एक समय ऐसा आया था जब देश के ऊपर लगातार आक्रमण होते थे, 2000 साल तक आक्रमण होते गए।
मुगलों के आक्रमण होते गए, हुनों के आक्रमण होते गए, और उस आक्रमण में टारगेट अपने देश की संपत्ति को भी किया जाता था और अपने देश की महिलाओं को भी किया जाता था। कभी आप बंजारा समाज के लोगों को देखोगे तो बंजारा समाज के लोग आज भी इतना सारा घूंघट पहनते हैं, उनके शरीर पे बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना उसको, टैकोज होते हैं। तो क्यों होते हैं, किसी ने आपने कोई बता सकता है क्यों होते हैं वो? तो उन आक्रमणों से बचने के लिए अपनी महिलाओं को वो बेरूप करके रखते थे। इतना कुछ महिलाओं को सहन करना पड़ा और वो होते होते महिलाओं को ज़्यादा सामने नहीं लाना, ये भारत के सिस्टम में शामिल हो गया, भारत के कल्चर में शामिल नहीं था। भारत के कल्चर में महिलाओं को ये सब जो 2000 साल का पीरियड था उसके पहले महिलाओं को बहुत सम्मान था। मैं मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पर आप महाभारत के, रामायण के समय का उदाहरण देखो तो महिलाओं के बहुत सम्मान था। ये 2000 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद में महिलाओं को पर्दे में रखना, पर्दे में रखने का मतलब उनको घर के काम रखना, घर के काम रखने का मतलब उनको बाहर नहीं लाना, ये धीमे धीमे सिस्टम से हमारे समाज की मनोवृत्ति बन गई। और इसके लिए महिलाओं को आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी बराबरी का बताने के लिए उनको कहना पड़ता है। अभी एक ही जॉब के लिए मान लो एक ही पोस्ट के ऊपर 2 लोग हैं और शायद जो महिला है उसका आउटपुट पुरुष का एसोसिएट से भी ज़्यादा है, फिर भी सैलरी के अंदर, प्रमोशन के अंदर उसको कभी कभी लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। ये होता रहता है, ये वो पुराना बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड से बाहर आने में काफ़ी लंबा समय और लगेगा। पर अब देश की लड़कियां, महिलाएं खुद की हिम्मत पर आगे आई हैं, वो खुद आगे आकर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। महिलाओं का जो फ्यूचर आपका सवाल था, वो महिलाओं का फ्यूचर आपको अपनी लड़ाई खुद ज़्यादा लड़नी पड़ेगी। समाज आपको मदद करेगा पर आप उसकी मोहताज नहीं हो। देश की महिलाएं धीमे धीमे अपना व्यापार करती हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाती हैं, प्रोफेशनल सेटअप चलाती हैं। मैं इतना समझता हूँ कि महिलाओं को मेहनत करने की, विश्वास जीतने का और दूरदृष्टि से देखने का, मैं आपके सामने आपको प्रेज नहीं करना चाहता हूँ, पर जितनी कूल आप हो, महिलाएं जितनी यहाँ बैठी हैं उतने हम में से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक बहन भी हो, बेटी भी हो, माँ भी हो। आपने बचपन से सब कुछ देखा हुआ है कि किस तरीके से आपकी माँ या आपकी बहन या आपकी बेटी उसको स्ट्रगल करके आगे आती है। जब आदमी डिफ़िकल्टीज देखता है तो ज़्यादा कूल हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, पर इट विल टेक इट्स ओन टाइम। मैं केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए मीठी मीठी बात करूँ, वो मेरे नेचर में भी नहीं है और आप लोगों के साथ इस स्टेज पे बैठ के तो बिल्कुल ही नहीं है। पर यस, यू हैव ए इक्वल स्टैंडिंग, यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर। पर जितना पुरुष को अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ता है उससे शायद 10% ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट कमेंडेबल, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर इस सच के साथ आप लोग आगे बढ़ोगी, आप लोग बहुत ज़्यादा दूर जाओगी। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ में तो महिलाएं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब जगह पहुंच गई हैं। भारत के अंदर इंदिरा गांधी के बाद में वो स्टेज अभी आनी बाकी है, पर आने वाले समय में आप लगे रहो बेटा, सब लोग खूब मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, सब आपके साथ है। Shri, if I can. Just a second. Hello. Hi, नमस्ते जी। मैं डॉक्टर विधि भानुशाली हूँ। एक कोई सवाल नहीं है, बट बस मेरे को मेरा सौभाग्य है जो मैं आज आपको लाइव सुन पा रही हूँ। जैसे आकांक्षा मैडम ने बोला, हम महिलाओं को आगे कैसे बढ़ा सकते। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई मॉम हैड टू टेक दैट घूंघट। द एग्जाम्पल जो सर आपने मेंशन किया, उस फैमिली से आके हमारी मम्मी ने मेरे को डॉक्टर बनाया। मैं डेंटल सर्जन हूँ और वो बस डॉक्टरी एंड माई स्किल इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू सर्टन नंबर ऑफ पीपल दैट आई सी, बट थ्रू स्टार्टअप एंड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हमने ऐसे AI पावर्ड बनाया जो अभी देश का हर एक नागरिक वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना ओरल हेल्थ अच्छा रख सकता है और अपनी तबीयत अच्छी रख सकता है। एक अप्रिशिएट मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, हम जब से लोधा बेलमोंडो में रहने आए लास्ट 2 साल से, तभी पता नहीं अभी इत्तेफाक है कि स्ट्रगल है, बट हमारी सक्सेस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो लास्ट 2 साल से सर मैं इस इवेंट के लिए
बेलमोंटो से आई, बस 2 घंटे में पहुंच जाते, एक तो एक्सप्रेस हाईवे। बट मुझे ये बोलनी है कि ये सर आपका जो विजन है, जो आपकी अच्छाई है, वो इतनी फील होती है कि बस आपके घर में रहकर भी हमें सक्सेस मिल रही है, ऐसे हमें महसूस होता है सर। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग सर। ऐसा है कि आप जो सक्सेस हुई हो, कि आकांक्षा जो सक्सेस हुई है, तो एक आप समझ लीजिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल की होती हो। महिलाएं बाय नेचर एक बार बहुत मजबूती से खुद के निर्णय करती है, और इसलिए जब मजबूती से निर्णय होते हैं, आप लोग बोलते कम हो, आप लोग बहस में कम उलझते हो, पर आपको सब समझ में आ जाता है। आपको बचपन से लोगों के चेहरे, लोगों का चाल चलन, किसका हमको रीडिंग करने में कभी कभी चूक हो जाती है, पर आप लोग चूकते नहीं हो। और इसलिए बेलमोंटो को जरूर आपने उदाहरण दिया है, पर वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो सब बिजनेस मेरे बच्चों का है, मेरा नहीं है। येस, आई एम विद देम। मिनिस्टर बनने के बाद मैंने छोड़ दिया है, पर स्टिल आई एम देयर फादर एंड आई लव देम। थैंक यू। I think we'll take one last question. Yes? Okay. Next, after. Yeah, after. थैंक यू सर। मेरा नाम यश केला है, हम लोग कुछ कंपनीज में इन्वेस्टर्स हैं। सर, जनरली स्टार्टअप्स ग्रो फास्टर एंड दे वांट टू हायर पीपल। नाउ जनरली महाराष्ट्र इज 20% of the revenue of established companies. So I wanted to take your guidance कि how can we take the support of the Ministry of Skill Development. जैसे हमारी काफ़ी portfolio companies in Maharashtra only who want to hire maybe 300-400 people and in jobs which are fundamental, construction, interiors, education. So and काफ़ी colleges हैं जहाँ से बच्चे graduate भी होते हैं, but there are some skill gaps. So the only support which will be required is to do some courses with these colleges ताकि वो skill gap match हो सके और वहीं से बच्चों को employment मिल सके. So if we can take the support of the Ministry of Skill Development to provide this facilitation only, it will be very helpful. If we can get your guidance in this direction, sir, I'm sure that a lot of Yes. So, in whatever way, sir, we can work with the Ministry of Skill Development, it will be very helpful. ऐसा है कि श्री ने यहाँ सबको इंट्रोड्यूस कराया, पर सबको इंट्रोड्यूस कराते समय उसकी आवाज़ में वो लव और अफेक्शन नहीं था जो यश के बारे में था। बोलता है मेरे इन्वेस्टर है ये। आप सोचा आप कितने इम्पोर्टेंट हो। बैठिए। हम आपके साथ में MOU करने को तैयार हैं। आप चाहोगे तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्किल डिपार्टमेंट, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारा आपका मिनिस्टर, जो कहोगे आपके साथ साइन करेगा। वी आर ऑल आउट, वी आर ओपन। और आपको स्किल सेंटर, आप में से किसी को भी स्किल सेंटर इस्टेब्लिश करना हो तो हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसमें रनिंग एक्सपेंसेज हम लोग देते हैं, सैलरी वगैरह डिपार्टमेंट देता है। अभी हमने उल्टा चल गए। पहले था कि सब गलत कर रहे हैं इसलिए सब बंद कर दो। हम अभी इस दिमाग में चल गए कि सब अच्छे हैं इसलिए सब ओपन कर दो। जो आता है हम उसको स्किल सेंटर शुरू करने के लिए कहते हैं, जो कहना चाहता है हम उसके साथ MOU करते हैं, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ेगी। आप तो हायर पोजीशन पे हो, यू आर इन गवर्नमेंट, आई एम इन गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट हैं। आप तो हमसे गवर्नमेंट जितने स्ट्रांग तो नहीं हो। जब आप हम पे भरोसा करते हो तो हम आप पे क्यों नहीं करें। हम इस थिंकिंग से सोच रहे हैं। आप आइए हमारे साथ में, हम आपके साथ MOU करेंगे। हम आपके साथ में, यदि आप जॉब मेले के अंदर हम हमारे पार्टनर बनना चाहोगे तो हम आपको पार्टनर बनाएंगे। आप यदि स्किल सेंटर, हमारे पास में महाराष्ट्र में 500 IITs हैं, आप किसी भी IIT में स्किल सेंटर खोलना चाहोगे अपना, तो हम आपको स्किल सेंटर खोलने के लिए आपके साथ में MOU करेंगे। महानगर पालिका की हम 250 स्कूल्स में 227 निखिल ने बताया वहाँ स्किल सेंटर खोल रहे हैं। वहाँ आप खोलना चाहो तो वहाँ खोलेंगे। और तोड़ छोड़ो, आपके ऑफिस के अंदर यदि आप 2 टेबल लगा के स्किल सेंटर खोलना चाहोगे तो वो भी हम आप पर फेथ रखते हैं, वहाँ भी स्किल सेंटर खोलेंगे। आपके लिए नहीं, सबके लिए। वी आर ओपन। कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई किसी का लेके आया नहीं, कुछ लेके क्या जाते हैं हम। कुछ आप जितना काम करना चाहोगे, आप, सरकार तो इतनी सी है और पब्लिक इतनी बड़ी है, तो जब तक पब्लिक साथ नहीं आएगी सरकार कभी सक्सेस नहीं होगी। वी आर ओपन टू ऑल द आइडियाज एंड ऑल द प्रपोजल्स। थैंक यू सर। डू आई हैव टाइम? ओके, नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं
चलो करके एक कंपनी बना रही हूँ, चलो मोबिलिटी, जो बॉम्बे में भी काम कर, चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी दूसरी कंपनी है, लाइक वी आर 4 फाउंडर्स। इसके पहले हमने कार वाले बनाई थी, carwale.com। चलो जो डेली कम्यूट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही है। तो हम बम्बई की 3500 बस पे हम लाइव ट्रैक करते हैं और सारे डिजिटल सोल्यूशंस देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 50 शहरों में काम कर रहे हैं इंडिया के, और मोस्टली सरकार के साथ काम करते हैं हर जगह। तो असम से लेकर कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह। बॉम्बे की सरकार अकेली सरकार है जहाँ पे हमने सारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं पिछले 6 से 8 महीने में, और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था लास्ट ईयर, मतलब इसी 2023 में ही मिला था। और इतना आसान है यहाँ पे शासन के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना। एंड आई वाज टॉकिंग टू श्री अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आप सरकार के साथ हर शहर में, हर स्टेट में काम कर रहे हो तो थोड़ा आप जो कह रहे हैं, हाँ जी। तो और मैंने उसके पहले जॉब किया है 8 साल गवर्नमेंट के अंदर भी बैठ के और गवर्नमेंट के बाहर भी, गवर्नमेंट के साथ एज अ पार्टनरशिप। It becomes very, very difficult to, you know, get things done. But I just want to appreciate, and this may be because of the leaders like you. It's very, very endearing to read about you on Wikipedia कि आपके पिताजी यदि चीफ जस्टिस हो गए जोधपुर, गुवाहाटी में, तो आपने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करूँगा। फिर आप जिस तरह बात करें, सर एक सेकंड मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। इंटरप्रेट करता हूँ, ये बात इन्होंने भी मेरे इंट्रोडक्शन में कही, आपने भी कही, तो लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल एवरीवन कि ऐसा मैंने अकेले ने नहीं किया था। उस समय ये जनरल फीलिंग थी कि यदि फादर प्रैक्टिस करता है तो फादर जज है तो सन को वहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए आई एम वन ऑफ देम। सर करनी नहीं चाहिए, वो एक मैंडेट नहीं है, पॉलिसी नहीं है सर, वो एक एथिक्स है, राइट। और जब हम कंपनी चलाते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं, आजकल यंग जनरेशन डोपामाइन पे जिंदा रहती है, तो और उनको क्विक चाहिए सब कुछ, राइट। तो हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छा रिटेंशन है। तो आप एज अ लीडर, एक्सपीरियंस लीडर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ पॉलिटिशियन, what would you like to tell all of us that how ethics and integrity and ideologies are important for you to be successful in any field? Because सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको लगता है कि यार जल्दी हो जाए, हमें हमारे पेरेंट्स का नाम मिल जाए, तो वो जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर सब बच्चों को आजकल वर्क लाइफ बैलेंस होता है, तो फिर ये होता है तो वो होता है, बहुत स्ट्रगल कभी कभी समझाने में लगता है कि हार्डवर्क ज़रूरी है और इंटीग्रिटी भी ज़रूरी है। मैं आपसे फुल्ली एग्री करता हूँ। मैंने शुरू में बताया था कि हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क पहले 3 नंबर हैं, और इंटीग्रिटी के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इंटीग्रिटी के अलावा तो आपकी लाइफ भी नहीं चलेगी। आपने यदि कल मैंने इनके साथ धोखा किया तो कल ये समझ जाएंगे कि लोढ़ा के साथ में कुछ व्यवहार मत करो, ये आदमी तो निखिल जैसे आदमी के साथ धोखा कर सकता है, और सबको सब समझ में आ जाता है। तो हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ती है, इंटीग्रिटी भी करनी पड़ती है, और शॉर्टकट्स तो कुछ लाइफ में होते ही नहीं है। जो शॉर्टकट होते हैं वो लॉन्ग रन में लॉन्ग कट हो जाते हैं। इसके लिए मेहनत करने का, अपने एक टारगेट तय कर लेने का, वो भली वो जर्दे पान पराग की दुनिया की ऊपर वो जो था, वो क्या, वो बड़ा ऊंचा सोचो, कौन बोलता था ना एक वो, ऊंची लोग ऊंची पसंद हाँ, तो वो ऊंची पसंद करो, बड़े बड़े सपने देखो, और सपने सच होते हैं, और सपने सच अपनी मेहनत से ही होते हैं। कुछ भी आप में से बैठा हुआ एक भी आदमी यदि अगले 3 दिनों में खुद को पहले खुद इंस्पेक्शन करके, मेरी शरीर में ताकत कितनी है, ताकत मतलब आपके पास पैसा, ताकत, समय 500 मीटर दौड़ने का है तो वो दौड़ो ना यार। 5000 मीटर में बात करके लास्ट में क्यों आते हो, इससे जो 500 मीटर में फर्स्ट 3 में तो आ जाओ। तो जो आपकी ताकत है खुद का, किसी का कॉपी काम नहीं आता है, हर एक का अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल है, तो उतना करके आप लड़िए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपने जो बताया दोनों चीज़ें सही है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित खंडेलवाल है। हम mksparepart.com चलाते हैं। फर्स्ट कंपनी है इंडिया की जो ऑनलाइन मैकेनिकल पार्ट्स देते हैं स्पेयर मोबाइल का, और ई वेस्ट में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमने एक MK अकेडमी चालू करी राजस्थान में, बिनमल में, जहाँ पे हम किसान के बच्चों को मोबाइल रिपेयर सिखाते हैं, प्लस सेल्स, मार्केटिंग, ये सब सिखाते हैं। टीचर रखे, अब उसके आधे से ज़्यादा लोगों को हम हमारी कंपनी में हायर कर रहे हैं।
अभी हमारे पास कंपनीज जो हमारे जिनको हम सप्लाई करते हैं, कैशिफाई, फ्लिपकार्ट, उनको हम बड़ी क्वांटिटी में स्पेयर पार्ट देते हैं रिफर्बिश फ़ोन के लिए। वहाँ से काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमको बंदे चाहिए, और स्पेशली छोटे शहरों से, गांव से, जिनके किसान के बच्चे हैं, तो एक तो टिक के काम करते हैं, आप उनको रहना खाना अच्छी सैलरी दो तो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। हमारी कंपनी में ऐसे 200 से 300 एम्प्लॉयज़ हैं। अब हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमको मुंबई में ऐसा स्टार्ट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आ रहा है। तो वी स्पोक टू रोटरी क्लब, बट तो भी वो हो नहीं पा रहा है। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर लुकिंग फॉर? बेसिकली जगह, ऐसा जगह जो, बिकॉज बॉम्बे में जगह नहीं मिल रही, फिर हम भिवंडी में सोच रहे हैं खोलने की। फिर हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट का फॉर्म भरना स्टार्ट किया, तो हमारी जो टीम है उन्होंने किया, तो सर सॉरी बट वो फॉर्म इतना बड़ा है, मतलब भरते भरते जगह की तो प्रॉब्लम बॉम्बे में है। बॉम्बे में कोई आदमी अनमैरिड आएगा तो उसको लड़की शादी के लिए मिल जाएगी, पर जगह तो नहीं मिलेगी अपने आप में। जगह तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। जगह तो बेटा आपको खुद को ही कहीं ना कहीं मैनेज करके रेंटल लेनी पड़ेगी, या किसी के साथ पार्टनरशिप में शेयर करना पड़ेगा। तो सर खाली वो सर्टिफिकेशन वी वर ट्राइंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, वो हम आपको दे देंगे ना। वो आप सर उसके लिए वो प्रोसेस, वो निखिल व्यास के और सीरी के प्रोग्राम में आए हो तो इतना तो आपको फायदा मिलेगा कि इतना आप पे भरोसा किया जाएगा। आप आ जाना कभी। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी इन टच विद देम। थैंक यू। Hello. Thank you, Honorable Minister Lodaji, Mangalji. Thank you for coming and gracing the occasion. We have a power pack panel coming up soon. Why don't you all join us, please? Mr. Yash, founder of Singularity Ventures, Singularity AMC. Karthik Reddy, one of the most popular investors in the country. Bloom Ventures, partner and co-founder. And he's also now the president of Indian Venture Capital Association. Then we have Priya Singh, founder of Chalo. And we have Akanksha here. And we have Akrit. Akanksha is a founder of Love Local. Akrit, please come. Akrit is the founder of Haptic, which is now part of the India's largest startup, Jio. He works directly with Mr. Ambani and the executive leadership at Jio. So we have a power-packed panel here, sir. And if you have time, probably you can spend 10 minutes listening to them. Otherwise, we'll take your time. Thank you.